السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ BRS کے سینئر رہنما اور تلنگانہ کے سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے ریاست میں گروکل اسکولوں کی زب و حالی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کانگریس حکومت کو مرید الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کانٹریکٹرز کی ادائیگیاں اور کرائے کی عدم ادائیگی کے باعث خوراک اور یونیفارمز جیسی بنیادی سہولتیں رک چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ عمارتوں میں چلنے والے گروکل اسکولوں کے کرائے اور زیر التوا بلز کو فوراً جاری کیا جائے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ BRS دور حکومت میں گروکل اسکول پورے ملک کے لیے مثالی بن گئے تھے، لیکن کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے وہ بدترین حالت میں ہیں۔ ان کے مطابق جنوری سے ادائیگیاں نہ ہونے کے سبب انڈے، گوشت، کیلے جیسی اشیاء کی فراہمی بند ہو چکی ہے۔ کانٹریکٹرز نے انتباہ دیا کہ اگر 1 جولائی تک واجبات ادا نہ کیے گئے تو وہ تمام تر سپلائی بند کر دیں گے۔ پچھلے 13 مہینے سے 450 کروڑ روپے سے زائد کرایہ کی ادائیگیاں باقی ہیں۔ بعض مقامات پر عمارت مالکان نے اسکولوں کو تالا لگا دیا ہے۔ کئی طلبہ اب تک یونیفارمز، جوتے، بیگ حاصل نہیں کر پائے اور پرانے پھٹے ہوئے یونیفارم پہننے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اسے ریونت ریڈی حکومت کی شدید ناکامی قرار دیتے ہوئے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا تاکہ غریب و پسماندہ طلبہ کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشا میلارام صنعتی علاقے میں صبح ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یہاں واقع سیگاچی کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکے کے بعد شدید آگ لگ گئی۔ فیکٹری کے ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پوری فیکٹری کو اپنی زد میں لے لیا۔ حادثے میں اب تک 10 مزدوروں کی موت کی خبر ہے جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں کچھ مزدوروں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی اور فیکٹری کے آس پاس کے علاقوں میں دہشت کا ماحول قائم ہو گیا۔ مزدور خوف و دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چشمدیدوں کے مطابق دھماکے کی وجہ سے کئی مزدور 100 میٹر تک دور جا گرے۔ یہ دھماکہ صبح 9 بجے ہوا۔ دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ اس دوران 108 ایمبولینس اور طبی اہلکار بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو اسٹریچر اور نیٹنچیرو کے اسپتال میں ابتدائی علاج کے لیے لے جایا گیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد فیکٹری کی عمارت پوری طرح منہدم ہو گئی۔ ملبے میں مزدوروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ۔ حادثے میں ہلاک مزدوروں کی ابھی سرکاری طور پر تصدیق نہیں۔ انتظامیہ نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری اور آس پاس کے علاقے کو خالی کروانا شروع کر دیا۔ سنگاریڈی ضلع کے پاشا مائلارم میں واقع سگاچی کیمیکل فیکٹری میں پیش آئے خوفناک آتش زدگی اور دھماکے کے سانحہ پر صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن خانساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں ری ایکٹر دھماکے کی وجہ سے پیش آئے حادثے میں کم از کم 10 مزدور ہلاک ہو گئے جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زخمی مزدوروں کو میسر طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور مہلوک مزدوروں کے اہل خانہ کو فوری ایکس گریشیا و بھرپور تعاون فراہم کیا جائے۔ کویتا نے اس اندوناک واقعے کو مزدور طبقے کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا اور کہا کہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کا اثر نو جائزہ لینا ناگزیر ہے۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود جھرا نٹراج نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک معصوم چھوٹی 13 سال کی بچی کا پڑوسی نے عصمت دری کیا اور معصوم بچی کو حاملہ کر دیا۔ بعد ازاں بچی کا علاج نیلوفر ہاسپٹل میں چل رہا۔ اس موقع پر اطلاع کے ساتھ ہی کانگریس لیڈر شیراز خان نے ہاسپٹل پہنچ کر اس متاثرہ سے ملاقات بھی کی اور اہل خانہ سے بھی بات چیت کی۔ بعد ازاں ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن پہنچ کر بھی اس ضمن میں شکایت درج کروائی۔ اللہ ہماری سبھی بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور کسی پر اپنے بچوں کو لے کر جلد بھروسہ نہ کریں، ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن میں نابالغ لڑکی کے عصمت دری کیس میں
में एक FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए कांग्रेस लीडर शिराज खान का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। इस पड़ोसी पर भरोसा किए थे कि बच्ची अकेली है, कुछ देख रेख कीजिए, लेकिन वही पड़ोसी उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करता है। अचानक घर में घुस जाता है, वो बर्तन धोते रहती है और उसको पीछे से पकड़कर रेप करता है। बच्ची लगातार यानी कि रोती है, झिझोड़ती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरिंदा मुंह पे हाथ रखकर उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश हो जाता है। लेकिन कई महीनों के बाद बच्ची डरती है। उसके डरने की वजह है कि माँ बाप को नहीं बता सकती है। ये वजह है कि उसको डराया जाता है कि तेरे छोटे भाई को और माँ बाप को और तुझे कत्ल किया जाएगा, लिहाजा अपना मुंह बंद रख। और उसको बहलाते फुसलाते हुए 8 से 9 महीने गुजर जाते हैं और बच्ची को अचानक पेट में दर्द होता है तो माँ बाप परेशान होकर नीलोफर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर बच्ची का एबॉर्शन हो जाता है। 13 साल की मासूम बच्ची और 9 महीने का बेबी डिस्चार्ज हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। इमीडिएटली वहीं पर नीलोफर हॉस्पिटल का स्टाफ पुलिस को इंटीमेट करते हैं कि मासूम बच्ची है, ये पुलिस केस होता है। वहां पर बच्ची को जान को बचाया जाता है, लेकिन वो इन्फेंट यानी कि फ्यूटस वो मर जाता है। उसके बाद ये माँ बाप पुलिस में भी यानी कि कंप्लेन GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने रहमत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। मेयर ने प्रोजेक्ट CE और CCP को हिदायत दी कि वो रहमत नगर सड़क को चौड़ा करने का प्रोग्राम शुरू करें। कॉलोनी के लोगों ने मेयर से सड़क को चौड़ा करने और ट्रैफिक के मसाइल दूर करने की दरख्वास्त की। मेयर ने फंक्शन हॉल के तामीराती काम का मुआयना किया। मेयर ने ब्रह्मा शंकर नगर आंगनवाड़ी के कम्युनिटी हॉल का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। जोनल कमिश्नर CCPA, सैनिटेशन प्रोजेक्ट CE और दीगर ने मेयर के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी BJP की रियासती सदारत के इंतखाब ने पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासती सदर के ओहदे के लिए नजरअंदाज किए जाने पर BJP से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भेज दिया है और उनसे गुजारिश की है कि वो इसको कबूल करें। राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्हें सदर के लिए नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि उनके हामियों को डराया धमकाया गया और कौमी कौंसिल के अरकान को उनकी हिमायत से रोका गया। उनके मुताबिक 10 अफराद नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वो 2014 से BJP के लिए जद्दोजहद कर रहे और शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से निशाना भी बनाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदर के इंतखाब में पहले से फैसला हो चुका था और उनकी मौजूदगी महज रस्मी थी। కానీ ఎంత కష్టపడి ఇవాళ లేకపోతే రేపు బీజేపీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణలో వస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణలో బీజేపీ రావద్దు అనేవాళ్ళు చాలా జమ అయిపోయినారు పెద్దోళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళే అనుకోకపోతే మేము ఎంత కష్టపడి మా ఫ్యామిలీని రిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇంత పని చేసిన తర్వాత లాభం మేము ఉండవు కదా. అందుకోసం అయ్యా మీ పార్టీకి దండం మీకు దండం అని। गुज़िश्ता कुछ दिनों से फ़िज़ाई सफ़र के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब तैयारे में तकनीकी खराबी या किसी दीगर वजह से परवाज़ में खलल पड़ी है। इस दरमियान मज़ीद 2 ऐसे मामले पेश आए हैं जब मुसाफिरों को फ़िज़ाई सफ़र में खलल पड़ने से परेशानी झेलनी पड़ी। जहां एक तरफ टोक्यो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के तैयारे में दिक्कत की वजह से उसे कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया, वहीं चेन्नई से हैदराबाद के लिए परवाज़ करने वाला तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से वापस हो गया। इस तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। टोक्यो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया बोइंग 787.8 ड्रीम लाइन्स तैयारे को कैबिन में दबाव से मुतालिक मसाइल की वजह से शाम में एहतियात के तौर पर कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। तैयारा महफूज तौर से कोलकाता में उतरा। दबाव से मुतालिक मसले की फिलहाल जांच की जा रही। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि मुसाफिरों को महफूज तौर से उतार लिया गया। कोलकाता हमारे ग्राउंड क्लेक्स इस गैर मुतवक्के डाइवर्शन से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए मुसाफिरों को सभी ज़रूरी ताउन फराहम कर रहे एयरलाइंस ने अभी तक दबाव के मसले को लेकर बयान जारी नहीं किया।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मस्जिदों की लाउडस्पीकर्स पर पाबंदी लगने के बाद एक अनोखी पहल के तहत अजान एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। मुंबई की निस्फ दर्जन मस्जिदों ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन रजिस्टर करवाया है जो नमाजियों तक अजान का वक्त बताएगा। ऑनलाइन अजान के नाम के इस एप्लीकेशन को तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया है। एजेंसी के मुताबिक मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी फहद खलील पठान ने बताया कि अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ी पाबंदियों और हसासियत को देखते हुए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप मुकामी मसाजिद से सीधे नमाजियों तक अजान पहुंचाने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि ये मुफ्त ऐप इस्तेमाल कुनिंदगान को घर पर अजान सुनने की सहूलत देगा। खलील पठान ने कहा कि ये पहल लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पुलिस की सख्ती के बाद किया गया, जहां ऑफिसरों ने मस्जिद का दौरा किया और वार्निंग दी कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो सकती है। इसकी वजह से मस्जिद ने आर्जी तौर पर अपना माइक बंद कर दिया है। खलीज ओमान में MTE चेंग 6 नामी एक जहाज में गुज़िश्ता रोज शदीद आग लग गई। इस आग की खबर जब हिंदुस्तानी बहरिया को मिली तो उसने सरगर्मी दिखाते हुए रेस्क्यू मुहिम शुरू कर दी और अब इस आग की शिद्दत बहुत कम हो चुकी है। बताया जाता है कि समंदरी जहाज में आग लगने की खबर मिलने के बाद वहां एक मिशन पर मौजूद हिंदुस्तानी बहरिया के जंगी जहाज INS तबर ने फौरन रेस्क्यू मुहिम शुरू कर दी। INS तबर को मुतासरा जहाज से एक डिस्ट्रेस कॉल मौसूल हुआ था, जिसके बाद INS पर मौजूद टीम हरकत में आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक MTE चेंग 6 नामी ये जहाज पुलाव एक मुल्क का है और इसके इंजन रूम में शदीद आग लग गई थी। जहाज पर पूरी तरह से बिजली भी गुल हो गई, जिसके बाद INS तबर की टीम 13 हिंदुस्तानी बहरी फौज और 5 पायलट टीम के अराकीन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये समंदरी जहाज गुजरात के कांडला से शेनाज ओमान जा रहा था। आग लगने के बाद उसने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया, जिस जहाज पर पायलट टीम के 14 हिंदुस्तानी अराकीन सवार थे। हिंदुस्तानी बहरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सिलसिले में की गई एक पोस्ट में लिखा कि INS तबर से फायर ब्रिगेड टीम और आग बुझाने वाले सामानों को दीगर कश्तियों और हेलीकॉप्टर से मुतासरा जहाज पर मुंतकिल किया गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बने जोहरान ममदानी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तल्ख हमला किया है। ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुद में इस्लाह करनी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो न्यूयॉर्क के मेयर बने तो हम शहर को मिलने वाले फंड में कटौती कर देंगे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ममदानी का उम्मीदवार की दौड़ में कामयाबी हासिल करना हैरानकुन है और इस पर यकीन नहीं हो रहा वो एक खालिस कम्युनिस्ट शख्स हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं वाज़ेह कहता हूँ, मैं सदर हूँ और अगर इसने अपने रवैये में सुधार नहीं की तो फिर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें सुधार लाना होगा या पैसा नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर जोहरान ममदानी पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा है कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, जैसा कि मेरे बारे में सदर ट्रंप ने कहा। इसके अलावा ममदानी ने फिर दोहराया कि वो मालदारों पर ज्यादा टैक्स लगाने के हक में है। ममदानी ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि हमें अरबपति की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सदर अब ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ और कहाँ से आया हूँ। असल बात यह है कि वो इन मामलों से तवज्जो हटाना चाहते हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।